Hello everybody, Namaskar. How are you doing? Okay, thank you. Same here. Today we have a small video of 1 to dash minutes in between, okay? It may exceed 1 minute and let's see how long it will go. Today we are having 4-5 words and here I have written this and this is what I'm just going to introduce. You may have seen, you will be using this, but still, let me start with. This is the beginning of the era of learning vocabulary, and I will more. I think I'm going to focus more on vocabulary. Doesn't mean I'm not going to focus on grammar. I will be, but still, let's see the power of vocabulary. There was a previous video that there still I didn't teach you anything. There I just focused 3 words: misnomer, pleonasm and redundancy, and whatever, don't worry, and here come. And before we start the class, please have a screenshot. Yeah, you did it, very good. Let me ask you one question. Why vocabulary? Here I have written why vocabulary. Why vocabulary? Just think. And here one point is written: nothing can be conveyed without vocabulary. If you want to pass a message, it's not grammar, it's vocabulary. It's words which make you to convey any message in any language. Doesn't mean I'm talking only about English. You need powerful, powerless, whatever kind of vocabulary is required to make. See, A, B, C, D. से हम स्टार्ट किया लर्निंग इंग्लिश एंड स्टिल we are going through the same area and still we need the same ABCD we have learned before years back. So my points here are why we should learn vocabulary. The most important point is in order to convey, suppose now we are talking about the lockdown period. At home, having conversation, once I heard mentioned the word confabulation against gossip like. So, whatever we need to do, make sure that that is by mistake, words are required. Powerful or powerless is the matter of, time, situation we are using. Here we have, you have already just taken a screenshot and you will be just watching that along with the video, after the video. The words are here like glass ceiling, breakthrough, becoming, unbecoming, just 1, 2, 3, 4, 5 words and how are you going to use them? Before that, let me tell you why I am with these words. There is no matching at all, just 5 words. How are they working? The most important thing is that you need to convey your message by speaking or by writing. And I think you have remembered many words kept in your mind to use on particular places, but still you are unable to use them. Why? Because you have used them to improve your power of words only. I mean, in order to improve your collection, nothing else. And still I know why people are a failure in using the vocabulary in proper place. सही तरीके से use क्यों नहीं हो रहे अभी क्योंकि तुक्का easily. So how can we just learn vocabulary in that way? You will really love it. Such a great level of excitement in using vocabulary. कैसे आएगा? Let's see what's the role of vocabulary. Grammar की बात करेंगे. So देखो convey यहाँ पर मैंने लिखा है G versus V. ग्रामर वर्सेस वोकैबुलरी, दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों का मुकाबले में कौन जीतेगा? शायद वोकैबुलरी. इवन इफ योर ग्रामर कई बार गलत होगा, नॉट इन फॉर्मल सिचुएशन, एक नेचुरल कैजुअल सिचुएशन में क्या होगा? अगर आपका ग्रामर गलत भी हो गया फिर भी आपका वोकैबुलरी के साथ आपका कनेक्शन मींस आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो इसमें से ओवरऑल दे आर पीपल लिसनर्स आर एबल टू कैच. फॉर एग्जांपल, मेरे को चाय और कॉफी चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा? I want the coffee.
Grammar is not that in order, but still those words उधर उधर लगा के फिर भी एक लाइन बना के हमारे को पता लग गया हाँ बंदे को चाय चाहिए कॉफी चाहिए. Otherwise coffee action with the one word definitely, and इसलिए बोलते हैं actions speak louder than words. Okay, so here vocabulary that important, इसलिए एक डिक्शनरी की बात करेंगे तो डिक्शनरी अराउंड अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी ऑफ दिस काइंड, दिस इज अ हिंदी डिक्शनरी सॉरी, एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, इतना मोटा सा अराउंड 2 लाख वर्ड्स उसमें है. इनमें से आपको कितना आता है एक बार कॉल करके देखना. इसके लिए एक एग्जाम्पल है, एक पेज खोलो, इनमें से एक बार पढ़ के देखो और कितना वर्ड्स आप यूज करना योग्य. सो इनमें से तकरीबन आपको पता लगेगा हाउ रिच यू आर. सो आपका अमीरी वोकैबुलरी में इंपॉर्टेंट है. एंड कई बार बोलते हैं ना मेरा आप जो स्टडी करते हैं आपका बुक खोल के देखो कितना वर्ड्स आपके पास है, बट समटाइम्स वी डोंट यूज नहीं, वी कांट यूज. व्हाई? क्योंकि वी डोंट हैव दैट पावर ऑफ आर्टिकुलेशन. क्या है आर्टिकुलेशन? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा एक बार. आर्टिकुलेशन मींस योर एबिलिटी, नॉट योर एबिलिटी किसी का भी एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर आइडियाज क्लियरली. हाँ, एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर आइडिया, आपका आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास चाहिए वोकैबुलरी. सो दैट बहुत सारे क्लासेस आपको मिलेगा एंड आपको कोई रिक्वायरमेंट है कोई पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड, कोई पर्टिकुलर एरिया के रिलेटेड आपको वोकैबुलरी चाहिए, प्लीज कमेंट एंड आई विल really just make it up. Okay, so here I have written gift of gab. What does it mean? It means आपका और किसी का भी ability to use, आपकी बातें करने का, बातें करके किसी को गिराने का, किसी को इम्प्रेस करवाने का एक एबिलिटी. मीन्स आपके बातों सुनने के लिए लोग आपके पीछे आने का एक मैजिकल पावर आपके पास हो जाता है. ये क्या गिफ्ट ऑफ गैप मीन्स, इफ यू हैव गिफ्ट ऑफ गैप मीन्स आपकी बात इतनी बढ़िया है, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इतनी ज्यादा एक मैजिकल पावर इसमें है. सो कहने का मतलब सुनने का अच्छा लगता है. यू आर एबल टू एनकरेज पीपल, यू आर एबल टू पर्सुएड. ये वर्ड सही लगेगा. पर्सुएड मींस आपकी बात, आप किसी से अपने बात मींस एक्शन कोई भी काम करवाने का एक पावर आपका बातों में है. सो ये वाला है. सो मींस if you want to be like this, if you want to have this gift of gab, definitely you need to have enough power of vocabulary, enough for this. Please make sure that you'll be learning them. Okay, this is what I would like to tell you. Here we are going for the words like number 1, glass ceiling. ये वाला नहीं ceiling. Glass ceiling का meaning एक हम रहेगा something. इस STH का something है. And यहाँ पर SD somebody का है, प्लीज ध्यान रखना इसका. Glass ceiling means something that prevents somebody from getting a more important position. Now I am a peon in any particular organization. वहां से मेरे को एक क्लर्क का और एक बड़ा पोजीशन ऊपर आने का एक मौका मेरे को मिलते जा रहा है, लेकिन वहां तक मेरे को जाने से कोई रोक रहा है मेरे को, क्योंकि इसको मैं क्यों दिलवा दूंगा. हाँ, ये तो बात है. डिक्शनरी वगैरह ये बोलती है मेनली विमेन के लिए, सॉरी टू से विमेन के लिए यूज करते हैं. विमेन को आगे बढ़ाने से रोकना. कोई पुलिस की बात करो, आर्मी की बात करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन में इसका हेड पोजीशन तक जाने का उनको क्या रोक लेता है, इसको बोलते हैं ग्लास सीलिंग. एग्जांपल हैगा रेड लाइन में, ग्लास सीलिंग में हैव बिकम मोर फ्रेजाइल, कॉमा उनको पता है फाइन बॉय से पहले कॉमा आ गया तो क्या होगा, या बट इट इज स्टिल इन प्लेस. स्टिल प्लेस मतलब अभी भी है. क्या अभी भी है? अभी भी क्या है? ग्लास सीलिंग में हैव बिकम मोर फ्रेजाइल, मतलब पहले का इतना पावरफुल नहीं है, इससे भी थोड़ा सा कम हो चुका है. पहले जितना था उससे भी कम हो चुका है, फिर भी अभी भी है. ये ग्लास सीलिंग के बारे में एग्जांपल. ग्लास सीलिंग में हैव बिकम मोर फ्रेजाइल. ओके, नंबर 2, ब्रेक थ्रू. इसमें देखो इधर भी ब्रेक थ्रू है, इधर ब्रेक थ्रू है. एक फ्रेजल वर्ब में आ गया, एक नाउन में आ गया. सो देखना, ब्रेक थ्रू टू सक्सेसफुली डील विद समथिंग that stops you from making progress. प्रॉपरली रोकना, सक्सेसफुली मतलब कोई भी चीज आपको रोकते हैं क्या आप आगे बढ़ना से. शायद आप सवेरे उठना चाहते हो लेकिन आपका लेजीनेस आपको करने नहीं देता. अगर वो लेजीनेस को पार करके आपने
उठा है, इसका मतलब यू आर सक्सेसफुली डीलिंग विद दैट। एग्जाम्पल देखो, कई क्लाउडी डेज में जो सूरज का किरणों को आगे आने नहीं देता है, कौन है? एक क्लाउड। पर फिर भी उसके बीच में से अगर आ गया तो क्या होगा? इसका एक सक्सेस है, सूरज का किरणों का सक्सेस है, वो प्रॉब्लम को क्या करना, पार करके आ गया, राइट। सो देखो, ब्रेक थ्रू टू सक्सेसफुली डील विद समथिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस। एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल देखना, ऊपर वाले एग्जाम्पल के साथ कनेक्टेड है, सो ये दोनों आपको और क्लियर हो जाएगा। Women have made scant progress, एक वर्ड इधर हम शायद डिस्कस करने वाला, scant progress in breaking through the ceiling, through the मैंने इधर उल्ट लिखा है, glass ceiling, GLASCEILING. Let's read again. Women have made scant progress in breaking through the glass ceiling to reach top position. फिर से देखो, women have made scant progress. इधर बोला become fragile, मतलब पहले का तरह इतना है नहीं, ये थोड़ा सा हो चुका है, लीनियंट हो चुका है, इतना स्ट्रिक्टली नहीं उनको रोक लेता अभी, मतलब कई जगह पे आपको पता है विमेन बहुत बड़ा अच्छा पोजीशन में करते हैं। ओके, सो विमेन हैव मेड स्कैंट प्रोग्रेस इन ब्रेकिंग थ्रू द, देखना इधर ब्रेक थ्रू क्यों ब्रेकिंग आ गया, ये हमारा प्रीपोजिशन है, एक रूल है, कई प्रीपोजिशन है, कई नहीं, टू के अलावा जो भी प्रीपोजिशन आ गया उसके बाद वर्ब आईएनजी में आते हैं, एक रूल है, हम बाद में देखेंगे। प्रोग्रेस इन के बाद वर्ब बदलो आईएनजी, ब्रेकिंग थ्रू द glass ceiling to reach top position means, इसका मतलब यहां से पता लगेगा शायद, आप अगर इसका मीनिंग नहीं है तो पता नहीं लगेगा तो मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। सो स्कैंट का मीनिंग not very much, women have made not very much progress in breaking through, मतलब ये सिस्टम को, ये प्रॉब्लम को सक्सेसफुली डील करने का इतना सक्सेसफुल नहीं हो गया, ये है इनका मतलब, इस लाइन का मतलब ब्रेक थ्रू का मीनिंग। सो देखना इसका, ब्रेक थ्रू, ब्रेक्स थ्रू, ब्रोक थ्रू, ब्रेकिंग थ्रू, ब्रोकन थ्रू, ब्रेकिंग, ब्रोकन, ब्रोकन। ओके, सो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू वाज द नाउन का क्या मीनिंग है? ब्रेक थ्रू is about an achievement, a success or a development in any case. That is what is the main basic meaning. So breakthrough का meaning is sudden, dramatic and important discovery or development. Okay? और it's an achievement in the area, एकदम से हो जाता है, and this is an important discovery, शायद काफी लोग सारे दुनिया बेटी करते होंगे, उसी तरह एक डेवलपमेंट की बात है, डिस्कवरी की बात है, कोई मेडिसिन हो सकता, कोई टेक्नोलॉजी का फील्ड में, साइंस का फील्ड में, कोई भी एजुकेशन का फील्ड में, हेल्थ का फील्ड में, कोई इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, अचीवमेंट हम कर लेता है इसको। ओके, एग्जांपल है छोटा, रिसर्चर्स ने बताया क्लेम्ड अनदर इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू इन कैंसर रिसर्च, कैंसर के अभी भी है ना, कैंसर पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो अभी तक क्या एक अच्छा एक रिसर्च इस एरिया में अबाउट मेडिसिन वगैरह। सो लेकिन यहाँ पे मतलब है रिसर्चर्स ने बताया क्या अनदर इंपॉर्टेंट एक अचीवमेंट इन्होंने कैंसर रिसर्च में कर चुका है। बिकमिंग, बिकमिंग वो वाला उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, एक एडजेक्टिव है, एडीजे एडजेक्टिव, इसका दो मीनिंग है, तकरीबन मैचिंग भी है। एक first meaning is that something that is attractive or fitting. For example, fitting is attractive. So कोई भी, and इस डिक्शनरी में ये बताया था क्लोथिंग के बारे में, something like that, an action आपका कुछ भी, so something that is attractive or something that is fitting. Okay, for example, this is a very becoming dress. आपके लिए ठीक है, सेट है, फिटिंग है। सो एग्जांपल इज दैट बिकमिंग, देखो ड्रेस, एडजेक्टिव का फंक्शन आपको पता है, नाउन का विशेषण के लिए आता है, कई बार नाउन के बाद वर्ब से पहले आता है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है एडजेक्टिव का क्लास में हम देखेंगे। एंड दिस इज अ वेरी बिकमिंग, मतलब दिस इज अ वेरी सूटेबल अट्रैक्टिव ड्रेस फॉर यू। हां, इट्स योर्स यू। इसका दूसरा मीनिंग है सूटेबल, एंड ये ड्रेस के बारे में, ये वाला अट्रैक्टिव और फिटिंग किसके बारे में बात की है? गुड ड्रेस के बारे में। यहाँ पर भी
suitability की बात कर रहे हैं, something suitable है. If something is suitable means becoming something that is suitable to you or anything. Becoming behavior. आपका behavior आपका प्रोफेशन के साथ बहुत मैचिंग है. Okay, means for example, if you're talking about your behavior is very becoming. You have a becoming behavior as a, or it is not the right. It is not the. It is not becoming for a teacher. Your behavior, your conduct, your way of talking is not becoming to a teacher. Means एक teacher का suitable नहीं है. So becoming का ये वाला. ये becoming का opposite है unbecoming. एक इनके लिए दो सेम मीनिंग है. एक attractive है नहीं है. दूसरा suitable है वो नहीं है. So unbecoming example क्या है? Not fitting and unbecoming color means for you. कई लोग होते हैं ना, कई color सूट नहीं होता, मैच नहीं होता. So बोलेंगे for you this color is unbecoming or unbecoming color. And here about suitable की बात करेंगे, not suitable. Example is an unfriendly behavior is unbecoming to a doctor. Means एक डॉक्टर पेशेंट के साथ बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब हमारा आधा बीमारी खत्म हो चुका होगा. Means a friendly unfriendly behavior एक डॉक्टर के लिए क्या नहीं है, becoming नहीं है. मतलब क्या है, unbecoming है मतलब suitable नहीं है. अनफ्रेंडली नहीं होने चाहिए डॉक्टर, और टीचर की बात करेंगे तो, और किसी की बात करेंगे तो सारे फ्रेंडली एक एटीट्यूड है, बिहेवियर सारे लाइक करता है आप भी. सो ये वोकैबुलरी आपको क्या बताया? कुछ नहीं बताया. आपको इतना बताया गिफ्ट ऑफ गैप के लिए क्या करना पड़ेगा. यू नीड टू थोड़ा सा कुछ वोकैबुलरी. फॉर एग्जांपल ये 5 वोकैबुलरी आप एग्जांपल अपने तरीके से एग्जांपल्स बना के देखो. डेफिनेटली इट विल इंप्रूव योर इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग मोर. अनदर बेनिफिट ऑफ why learning vocabulary. And don't think about what you can't, think about what you can. There is a saying, once I was watching a Malayalam movie, इसमें एक message है, and that can be like message is this: love what you do and do what you love. Love what you do and do what you love. लव व्हाट यू डू. आपको जो अच्छा लगता है, जो आप प्यार करता है उसको करो, और जो आप करते हो ना वो कैसे करो, प्यार से करो. सो कहने का मतलब यहाँ पर आपको पता है, इफ यू वांट टू बी गुड एट, इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल स्पीकर और राइटर ऑफ इंग्लिश, डेफिनेटली वोकैबुलरी, ग्रामर डेफिनेटली वी नीड, बट इन दोनों का मुकाबले में वोकैबुलरी का रोल थोड़ा सा ज्यादा है. इस करके प्लीज मेक श्योर दैट यू विल बी गेटिंग. एंड प्लीज लेट मी नो द कमेंट ऑफ this class so that I can come with more promising classes. And this is all about your reply to me, your comment to me, that will make me more powerful with my expressions, my performance, everything. What is more? Nothing but